Good morning and praise the Lord to all my brothers and sisters in the most holy and precious mighty living name of our Lord and Savior Jesus Christ. सुबह की सलाम हमारे सभी प्रिय भाइयों बहनों बड़ों बुजुर्गों को, हर एक विश्वासी प्रीचर पास्टर बिलीवर को हमारी तरफ से प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में सलाम स्वीकार हो, आमीन। आज का पवित्र कलाम जेम्स चैप्टर 5 वर्स 7 टिल लास्ट हम पढ़ेंगे। याकूब चैप्टर 5 वर्स 12 in Hindi also I'll read from verse 7 till last। आइए हम परमेश्वर का कलाम पढ़ने से पहले प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद 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 यावा राफा यावा यरोम यावा शलोम यावा यरी यावा इलोहिम गॉड द सन प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा जी, होली मदर ऑफ द लॉर्ड, we are so thankful to you for your unconditional mercy and blessing in the living name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary. Father Lord, you had blessed us with the word of God today. Make me able to read and speak the word of God, meditate on this। मुझ में आप मैं हूँ कि प्रभु जी वचन को डिलीवर करें और किसी भी चीज़ की कमी घटी ना हो। मेरे यहोवा परमेश्वर, स्पेशली bless me to speak in the right manner, Father Lord, ना ही कुछ वचन में बढ़ा के और ना ही घटा के बोलूं। In Jesus' precious name, with the presence of Holy Spirit, I ask this prayer. Amen and amen. James chapter 5 verse 7 till last. I'll read in English first, then in Hindi. Be patient then, my brother, until the Lord comes. See how patient a farmer is as he waits for his land to produce precious crops. He waits patiently for the autumn and spring rains. You also must be patient. Keep your hope high, for the day of the Lord's coming is near. Do not complain against one another, my brother, so that God will not judge you. The judge is near, ready to appear. My brother, remember the prophet who spoke in the name of the Lord. Take them as example of patience, endure under suffering. We call them happy because they endured. You have heard of Job's patience, and you know how the Lord provided for him in the end. For the Lord is full of mercy and compassion. Above all, my brother, do not use an oath when you make a promise. Do not swear by heaven or by earth or by anything else. Say only yes when you means yes and no when you means no. And then you will not come under God's judgment. Is anyone among you in trouble? He should pray. Is anyone happy? He should sing praise. Is there anyone who is ill? He should send for the church elder, who will pray for him and rub olive oil on him in the name of the Lord. His prayer made in faith will heal and sick person. The Lord will restore him to health, and the sin he has committed will be forgiven. So then confess your sin to one another and pray for one another, so that you will be healed. The prayer of a good person has a powerful effect. Elijah was the same kind of a person as we are. He prayed earnestly that there would be no rain and no fall on the land for 3 years and 3.5 years. Once again he prayed, the sky poured out its rain, and the earth produced its crops. My brother, if one of you wander away from the truth, and another one who turns Whoever turns a sinner back for
his wrong way will save that sinner soul from death and bring about the forgiveness of many sins. This is the word of God. Praise be to God. Amen. I'll read in Hindi. धैर्य की आवश्यकता, वर्स 7 till 11 की हेडिंग है ये। भाइयों, प्रभु के आने तक धैर्य रखें। किसान को देखो जो खेत की कीमती फसल की बात जोता है। उसे प्रथम और अंतिम वर्षा के आने तक धैर्य रखना पड़ता है। आप लोग भी धैर्य रखें, हिम्मत न हारें, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। भाइयों, एक दूसरे की शिकायत ना करें, जिससे आप पर दोष ना लगाया जाए। देखिए, न्यायकर्ता द्वार पर खड़े हैं। भाइयों, जो नबी प्रभु के नाम पर बोले हैं, उन्हें सहिष्णुता तथा धैर्य का अपना आदर्श समझे। हम उन्हें धन्य समझते हैं जो दृढ़ बने रहें। आप लोगों ने योब के धैर्य के विषय में सुना है और आप जानते हैं कि प्रभु ने अंत में उसके साथ कैसा व्यवहार किया, क्योंकि प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। 12th वर्स की हेडिंग है, शपथ नहीं खानी चाहिए। भाइयों, मेरे भाइयों, सबसे बड़ी बात यह है कि आप शपथ नहीं खाएं, ना तो स्वर्ग की, ना पृथ्वी की और ना किसी अन्य वस्तु की। आपके बात इतनी है हाँ कि हाँ, नहीं कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि आप दंड के योग्य हो जाएं। प्रार्थना की आवश्यकता। यदि आप लोगों में कोई कष्ट में हो तो वह प्रार्थना करे, कोई प्रसन्न हो तो भजन गाए, कोई अस्वस्थ हो तो कलीसिया के अध्यक्षों को बुलाए और वे प्रभु के नाम पर उस पर तेल मले। तेल विलेपत करने के बाद उसके लिए प्रार्थना करें। वह विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी और प्रभु उसे स्वास्थ्य प्रदान करेगा। यदि आपने पाप किया है तो उसे क्षमा मिलेगी। इसलिए आप लोग एक दूसरे के सामने अपने अपने पाप स्वीकार करें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, जिससे आप स्वास्थ्य हो जाए। धर्मात्मा की भविष्य भक्ति में प्रार्थना बहुत प्रभावशाली होती है। एलिया हमारी ही तरह नरे मनुष्य थे। उन्होंने अनुग्रह के साथ इसलिए प्रार्थना की कि पानी ना बरसे और 3.5 वर्ष तक पृथ्वी पर पानी नहीं बरसा। उन्होंने दोबारा प्रार्थना की, स्वर्ग से पानी बरसा और पृथ्वी पर फसल उगने लगी। पापियों का सुधार। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरे उसे वापस ले आए, तो वह समझे कि जो किसी पापी को मार्ग से वापस ले आता है, वह उसके आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढक देता है। ये परमेश्वर का पवित्र कलाम है। इसके पढ़े और सुने जाने पर यहोवा परमेश्वर की बरकत हम पर बनी रहे। आमीन। आज के पवित्र कलाम में हमें बहुत सारे, एक नहीं, दो नहीं, 4-4, 5-5 मैसेजेस हमें इसमें मिले हैं। पहली बात, पहले 7वें वर्ष में कहा गया, प्रभु के आने तक धैर्य रखें। किसान का एग्जाम्पल दिया गया कि जिस तरह फार्मर अपनी फसल के बीज जब डालता है वो धैर्य रखता है। बहुत सी वर्षा होती है और आज भी आप समझ रहे हैं कि किस तरह बरसात बहुत ज़्यादा हो रही है और फसलें खराब हो रही है, पुल टूट रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं।
लेकिन वहां पे रहने वाले लोग आज भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उनके गुनाहों को माफ कर और उन्हें बचा ले, और बहुत जल्द वेदर ठीक होगा। वैसे हाई अलर्ट है 2 तारीख तक, लेकिन जैसे ही वेदर ठीक होगा उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी मिलेगा। दैट कम्स इन अ पेशेंस। व्हेन वी हैव पेशेंस वी फाइंड द सॉल्यूशन एंड वी रिसीव द विक्ट्री। आगे लिखा गया, भाइयों एक दूसरे की शिकायत ना करें, झूठी शिकायत ना करें, एक दूसरे से झूठी शिकायत ना करें। इफ वी हैव एनी मिसअंडरस्टैंडिंग इन आवर माइंड रिलेटेड टू ईच अदर, you should go and talk to your brother or whomsoever that person is. Go and talk to them and try to sort out and find the solution. But if you had been there for finding the solution, जब आप वहाँ जाते हैं उससे सुलह कॉम्प्रोमाइज करने, और उसके बावजूद भी अगर वो आपको इग्नोर करता है, तो आप उस समय आप अगर उसकी शिकायत कर रहे हैं तो आप दंड के योग्य नहीं। हाँ, अगर आप किसी पे फॉल्स एलिगेशन लगा रहे हैं तो आप दंड के योग्य हैं। आगे लिखा गया कि धैर्य मीन्स पेशेंस का एग्जाम्पल हमारे को एक बहुत ही बड़े नबी, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया, परमेश्वर के विश्वासी आयूब का नाम लेके यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया। उन्होंने बहुत साल पेशेंस रखी और सब कुछ खो देने के बावजूद उन्होंने प्रभु का ही धन्यवाद किया। और आज के दौर में जो विश्वासी लोग हैं जिनका विश्वास डोलता है, वो थोड़ी सी समस्या आने पे परमेश्वर को छोड़ के अलग मार्ग पर चले पड़ते हैं। और यहाँ पे आयूब का एग्जाम्पल दिया गया, और आयूब को परमेश्वर ने 50 नहीं, 60 नहीं, 100 गुना जो भी उसका खोया था उससे 100 गुना ज्यादा यहोवा परमेश्वर ने आयूब को दिया। आगे लिखा, शपथ ना खाएं। आजकल ट्रेंड है, लोग कहते हैं भाई तेरी कसम मैंने ये काम किया, मैंने ऐसे किया, भाई तेरी कसम वो ये कह रहा था, वो कह रहा था। यहाँ लिखा गया परमेश्वर के कलाम में, अगर आप परमेश्वर के में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर के विश्वासी हैं, then make sure you do not take any swear of anything. If you say yes, that should be yes. If you say no, that should be no. आपका हाँ का मतलब हाँ और ना का मतलब ना होना चाहिए। आगे लिखा गया परमेश्वर के कलाम में प्रार्थना की आवश्यकता। यहाँ पे एलिया नबी का हमने वचन में पढ़ा, एलिया नबी के बारे में, जब उन्होंने प्रार्थना करी तब 3.5 वर्ष तक परमेश्वर ने पृथ्वी पर बारिश नहीं बरसाई। और सच में अगर आपकी प्रार्थना इतनी मजबूत और अटूट है, वो कैसे होगी? आपके विश्वास के द्वारा। अगर आपका विश्वास मजबूत है तो आपकी प्रार्थना मजबूत होगी। अगर आपका विश्वास अटूट है तो आपकी प्रार्थना भी अटूट होगी। अगर कोई भी किसी भी प्रकार का तिगड़मबाजी कर ले और आपको कष्ट देने की कोशिश करे, वे नहीं दे पाएगा। बेशक आप किसी गलत कमिटमेंट्स में ना फंसे हों, आप इग्नोर ना कर रहे हो उस चीज को। सो मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरे बड़ों, मेरे बुजुर्गों, whatever we commit with anybody, we should think twice and thrice about that. आगे बहुत खूबसूरती से कहा गया पापियों का सुधार, बहुत खूबसूरती से। मेरे भाइयों, यदि आप लोगों में कोई सच्चे मार्ग से भटके और कोई दूसरा उसे वापस ले आए, तो यह समझे कि जो किसी
पापी को कुमार्ग से वापस लाता है, वह उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाता है और बहुत से पाप ढक देता है। यहां पे परमेश्वर का कलाम आप कितने लोगों तक पहुंचाते हैं, और परमेश्वर की पावर, परमेश्वर की सामर्थ और परमेश्वर का कलाम की बरकत आप कितने लोगों को बताते हैं। और जब बताते हैं और कोई भी जन जिंदा परमेश्वर को, सच्चे पाक कलाम को ग्रहण करता है, तो आप उसकी आत्मा को मृत्यु से बचाते हैं। ये मृत्यु क्या है? ये मृत्यु वो है जो आफ्टर जजमेंट डे मिलेगी, क़यामत के दिन पर। और लोग कह देते हैं कि फलाना मर गया, दैट पर्सन डाइड। वो मृत्यु नहीं है। जब तक क़यामत का दिन नहीं आ जाता, तब तक मृत्यु नहीं आएगी। जितने भी लोग किसी भी धर्म में क्यों ना हो, अगर परमेश्वर में सो गए हैं, चाहे वो दफनाए गए, चाहे वो जलाए गए, इस चीज को याद रखना कि वे एक दिन जलाए जाएंगे और हर एक का न्याय होगा, हर एक का न्याय होगा, हर एक का हिसाब होगा। और उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन प्रभु के साथ स्वर्ग में और कौन पृथ्वी की आखिरी गहराई तक नरक में जाएगा। ये वो मृत्यु की बात हो रही है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। मेरी आज फिर एक बार आपसे यही दरख्वास्त है कि परमेश्वर में बने रहो, परमेश्वर का धन्यवाद करो और प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम की जय जयकार करो विद द प्रेजेंस ऑफ होली स्पिरिट, लव ऑफ मदर मैरी। आइए हम प्रार्थना में आएंगे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। यावा राफा, यावा यरोम, यावा शलोम, यावा येरी, यावा एलोहिम, गॉड द सन, प्रभु यीशु मसीह नासरी जी, प्रभु पवित्र आत्मा, प्रभु मां मदर मैरी, तहे दिल से शुक्र गुजार करते हैं वो बेशकीमती प्यार जो आपने इस संसार से किया, इस पृथ्वी से किया। मेरे यहोवा परमेश्वर, हम गलतियों का पुतला होने के बावजूद भी आपने हमारे गुनाहों को माफ किया। मेरे यहोवा परमेश्वर, in the name of Jesus Christ, with the presence of Holy Spirit, love of Mother Mary, और every mistake के बाद आपका वो प्यार हमें कहता है, पुत्र अपनी गलती को मान और ये दोबारा ना करना। और सच में प्रभु जी, आपका ये प्यार कितना कितना महान है प्रभु। तहे दिल से शुक्र गुजार करते हैं इस बेशकीमती प्यार के लिए। मेरे प्रभु, मेरे यीशु, मेरे नासरी, मेरे जिंदा खुदा आसमानी बाप, इस योग्य कर कि आपकी बरकत हर एक विश्वासी, पास्टर, प्रीचर, बिलीवर पर बनी रहे। मेरे घर परिवार पर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चों, मेरे भाई पर, हमारे कारोबार पर, हमारे आने जाने, उठने बैठने, चलने फिरने, बोलने चालने पर, स्पेशली फादर लॉर्ड, हम सब की जो कमिटमेंट हम करें, हाँ की हाँ और ना की ना में हो। इस योग्य कर कि हमें कभी किसी की कसम ना खानी पड़े। In Jesus' precious name, we give you thanks and praise always and forevermore. Amen and amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us every day our everyday's bread. Forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from all evil. For thy kingdom, power, and glory remains now and forevermore. Amen and amen. O my Lord Jesus, save us from all our sins, save us from the fire of hell, lead all souls to heaven.
especially those who are in need of the mercy. In Jesus' precious name we ask this prayer. Amen. Hail Mary, full of grace, Lord is with thee. Blessed is the fruit of the womb, Lord Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. The grace of God, love of Jesus Christ, fellowship of the Holy Spirit be with you all, and also with me, my wife, our kid, and my brother, and our family members. In the name of the God the Father, God the Son, God the Holy Spirit, love of Mother Mary, we ask this prayer. Amen and Amen. Myself, Robin, Richard, shalom and goodbye. God bless you all. Praise be to God. Amen.